My dream profession as a child was to go into full-time cricket only. एक और फंडा तो जेएनयू में था, सरकारी पैसा को सरकारी एग्जाम में लगाना है, मतलब यूजीसी जेआरएफ पैसा को यूपीएससी में लगाना है. It is an investment type. Power is not in troubling people. Power is in helping people. Help is done not to known people. Help is always done to people whom you don't know. Civil service examination is a mental marathon. That's what I see. As an aspirant, you should not come into civil services. मेरा बुआ ने बोला है, मेरा अंकल ने बोला है, मेरा चाचा ने बोला है, मेरा पापा ने बोला है. आपको अंदर से वो ड्राइव होना चाहिए. I am your host Gaurav Garg and we welcome all our viewers to our show Amazing Mentor. Today with us is Mr. T. Kabilan. He is an Indian Defence Account Service Officer of 2005 batch. He is currently appointed as Director in NITI Aayog. As Director NITI Aayog, he deals with schemes and public policy of Northeast India. Taking academic interest in public procurement, he specializes in contract negotiation, government purchases and contracting, change management and Kaizen. It's a pleasure to welcome Mr. T. Kabilan to our show Amazing Mentor. Welcome, sir. Thank you so much. Thank you for having me. My pleasure, sir. And thank you for your time, sir. So tell us about your childhood and hobbies you still enjoy. I'm born and brought up in Chennai. I'm a cricket freak, so I love cricket. I've been playing cricket for all these years and still playing cricket. So what about your schooling, sir? Where did you completed your schooling from? I have done my schooling from Chennai primarily. In the last school I studied Holy Angels, Chennai. My father was from the banking service. He had a lot of transfers within Chennai, so I was moving along with my family. So I did my college from Loyola College, Chennai in sociology. Then I did my MA and MPhil from JNU and subsequently appeared for civil services. Then I got allotted to Indian Defence Account Service in 2004 civil services examination 5 batch. So what was your dream profession as a child? My dream profession as a child was to go into full-time cricket only, into full-time cricket. So that time there was no IPL, so that time we had the Indian team and I used to watch cricket throughout. I am such a cricket fanatic that I remember one time that I was writing the Tamil Nadu Public Service Commission examination after graduation. So that day I still remember the first part was general studies paper and second part was the optional paper, and that day was India-Pakistan match. So I just came back home. That's it. I came back home and my father was kind of shocked. He said, "What are you doing here? What are you doing here?" Then, really, your life is on the line type. Then I said, cricket देखना था. Then my father gave me left, right and center. Then उसके बाद my mother is also a good cricket fan. तो मार वार मिलने के बाद फिर चलो टीवी चालू करते हैं देखते हैं बोल के. तो wanted to play cricket. I captained my team. I captained my department also in the university in Delhi. I got a chance to play for Tamil Nadu Cricket Association also. Then that clashed with my plus 2 board examination. Then my father said that cricket wicket खेल के कुछ नहीं होने वाला है तो पढ़ाई में ध्यान दो type. So फिर then I still keep playing cricket, but very passionate about cricket. Had I not been into government service, कम से कम IPL में कहीं I would be sitting somewhere, if not playing in the main team, at least I would have been sitting. मतलब पानी वानी लेके जा रहा होगा पक्का, उतना तो है. But anyway, I have a different line of work now. Yeah. Where did this idea strike of coming into UPSC examination? Idea of UPSC was never in my, though my uncle was an IS officer, I was very casual as such. I was मतलब पूरा खेल रहा था, and my parents also kind of left hope that ये बच्चे में कुछ नहीं है, मतलब खेल कूद के ऐसे करता रहेगा बोल के. Then when I came to JNU, then my senior said that भैया इतना क्या खेलोगे, मतलब क्रिकेट में आगे लाइफ नहीं है, थोड़ा पढ़ाई कर लो. मैंने बोला भैया नहीं, मतलब हम इधर यूनिवर्सिटी खेलेंगे, उसके बाद दिल्ली में देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सोनेट क्लब. सोनेट क्लब में जो भी खेलेंगे दे विल प्ले फॉर द दिल्ली रणजी टीम. हमारा आइडिया था मतलब सोनेट खेलना है, सोनेट के बाद रणजी खेलना है, रणजी खेलने के बाद कुछ ना कुछ सेट हो जाएगा बोल के. सो आई वाज इनटू दैट मोड.
फिर माय सीनियर्स एंड ऑल दे सेड दैट जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम एक बार ट्राई करके देख लो बोल के। मैंने बोला भैया हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम थोड़ा मतलब अच्छे से जम के खेलेंगे बोल के, एक बार तो देखे दो। मैंने बोला मजा के लिए नहीं करना है बोल के। देन एक दिन मेरे को देयर वाज अ पावर कट इन जेएनयू, तो हम बाजू वाला कमरे में जाके देखे, देयर वर टू कैंडल्स, मोमबत्तियां चल रहा था, एंड मतलब टेबल के ऊपर किताबें ही किताबें हैं, एंड वन भैया वाज स्टडी। आउट ऑफ एंथुसियाज्म जाके पूछे भैया ये क्या कर रहे हो बोल के। नहीं नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। किसके लिए? यूजीसी जेआरएफ एग्जाम के लिए। ये क्या होता है? नहीं यार ये एग्जाम देने से ना आपको पैसा मिलेगा। तो उस टाइम एज अ यंग स्टूडेंट हु इज डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स मनी, दैट पैसा वाला स्कॉलरशिप, कितना पैसा मिलेगा भैया? तो 8-10 हजार मिलेगा, मतलब 8-9,000 रुपीज वॉज अ बिग अमाउंट। बोलो ये फंडा अच्छा है बोल के, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड। फिर देन आई फाउंड आउट दैट एक और फंडा तो जेएनयू में था, सरकारी पैसा को सरकारी एग्जाम में लगाना है, मतलब यूजीसी जेआरएफ पैसा को यूपीएससी में लगाना है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट टाइप। तो वो बाद में मेरे को समझ में आया। देन इनिशियली आई वाज ट्राइंग फॉर यूजीसी जेआरएफ, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। तो वो मेरे को फर्स्ट टाइम आई गॉट नेट, उसके बाद सेकंड टाइम आई गॉट जेआरएफ। फिर पैसा आने लगा, फिर पैसा आने के बाद फिर आई वाज टू मच मनी, आई वाज अ वेरी रिच मैन व्हेन यू हैव 8,000 रुपीज फॉर अ स्टूडेंट दैट टाइम, बहुत ज्यादा पैसा था। तो ऐसे फिर बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पैसा को आपको इसमें यूपीएससी में डालना है, वो इन्वेस्टमेंट है। मैं बोला चलो हम भी ट्राई करते हैं बोल के। फिर देन आई हैड टू गो अवे फ्रॉम माय क्रिकेट वाला थिंग, so I was caught between these two worlds. Then one of my seniors, they're all अभी in service, IPS में है, दूसरा सर्विस में, they said that नहीं नहीं तुम बैठ के एक बार तैयारी करो, फिर नहीं होगा तो then you can always have that thing. So that is how all it started. There was one Rahul Bhai, and there is Rafiul Bhai and Rajneesh Bhai. मैं उनको 3 R बोलता हूँ, the R Trinity, R. So I am always thankful to all three of them. Had they been not there, I would not be at least in government service. तो पता नहीं लाइफ में क्या होगा, बट वो पूरा उन्होंने बहुत हेल्प और सपोर्ट किया है। What all challenges you faced while preparing for your civil service examination? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट जो फर्स्ट अटेम्प्ट जब हम दिए थे, आई वाज काइंड ऑफ वेरी मतलब ओवर कॉन्फिडेंट लड़का था। मतलब हमने तो मतलब लॉयला कॉलेज से पढ़ाई करके आए हैं, कौन सा ये सोशियोलॉजी है, कौन सा यूपीएससी है, देखा जाएगा टाइम। तो उस टाइम तो मतलब थोड़ा ब्रैटिश आउटलुक था, मतलब टू मच ओवर कॉन्फिडेंस था, बट टाइम तैयारी भी नहीं था, बट इट वाज पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो जब एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में मार खा के आया है, फिर पता चला भैया इसमें ये एग्जाम कुछ अलग ही चीज है, दिस इज अ डिफरेंट एग्जामिनेशन। एंड उसके बाद देन माय सीनियर सेड दैट नहीं नहीं आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऑल दोस थिंग्स। देन आई फाउंड दैट दिस इज अ वेरी टफ एग्जामिनेशन, आपको बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। एंड इन जेएनयू लाइक इन एनी अदर प्लेस, आपको साइड बाय साइड आपको कोर्स वर्क भी करना पड़ेगा, एंड आपको यूपीएससी भी करना पड़ेगा। In my case, though, I had to sacrifice my coursework because in my whole life, if I've got less than 70% grades, that is in my JNU only. So after the first attempt, में जो mark आया था, मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर बहुत रगड़ाई किया। There was an incident which happened. जब ये मेरा MA के बाद हो गया था, MA के बाद जब हमारा MPhil का और जो JRF का पीरियड में हमें दोबारा एंट्रेंस देना पड़ेगा फॉर द एमफिल जेएनयू में। उस टाइम क्या हुआ था, मेरा उस साल में जेएनयू में एमफिल का नहीं हुआ। आई फेल्ड इन दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिकॉज क्या है, रिटर्न मेरा क्लियर हो गया था। जब वाइवा में गए थे, फिर वो जो जितने भी हमारा जो प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, अरे तुम तो यूपीएससी वाले हो, तुम क्या एमफिल करोगे बेटा, मतलब नहीं आपको सीट नहीं है, राइट। तो उन्होंने कर दिया, आप तो क्लास वास भी अटेंड नहीं किए हैं, आपके पास ग्रेड्स नहीं है, फलाना ढिमकाना हो गया। तो फिर आई वाज स्टेइंग एज अ इलीगल रेसिडेंट इन जेएनयू इन वन ऑफ माय फ्रेंड्स रूम, उसको पिग बोलते हैं, पिग।
परमानेंट इलीगल गेस्ट, उसको PIG बोलते हैं. सो आई वाज स्टेइंग एज अ पिग. तो उस साल मेरा क्या हो गया था, मेरा सब क्लासमेट भी लोग भी उन्होंने प्रीलिम्स दिया था, बट सिर्फ मेरा निकला था उस साल. तो फिर उसमें क्या हो गया था, नॉर्मली जब हॉस्टल में ये इलीगल गेस्ट को पकड़ने के लिए वार्डन लोग आते हैं जो इलीगली रह रहा है, एनी हॉस्टल में होता है. उस टाइम मेरा प्रीलिम हो गया था, मेरा मेंस का मतलब चल रहा था. उस दिन मेरे को बहुत याद है, इट वाज अ कोल्ड विंटर. उसके बाद रात को करीब 3:30 AM आई गॉट अ कॉल ऑन माई, मेरे पास उस टाइम बहुत पुराना मोबाइल था, नोकिया 3310. तो रफीउल भाई का कॉल आया था, यार तुम भाग जाना हॉस्टल से, ये वार्डन लोग आ रहे हैं. तो उस दिन मेरे को इंग्लिश का पेपर था, मेंस का इंग्लिश पेपर था. तो चले जाना, पकड़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा. मैंने बोला ठीक है. फिर आई गॉट डाउन फ्रॉम द सेकंड फ्लोर. आई वाज स्टेइंग इन रूम नंबर 256 इन पेरियार हॉस्टल. मेरे को स्टिल याद है, मेरा जो सीनियर का रूम में था. तो मैं नीचे आया था, फिर कॉम्पाउंड वॉल जंप करके, दूसरा हॉस्टल का कॉम्पाउंड वॉल जंप करके मैं उस हॉस्टल में आई वेंट इनटू द हॉस्टल. एंड उसमें पहला फर्स्ट फ्लोर में जाके उनका टीवी रूम में बैठ के मैं टीवी देख रहा था अराउंड 4 o'clock, जस्ट सो दैट ये चेकिंग हो जाएगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा बोल के. देन फिर वो बोल रहे थे, यार तो आज तुम्हारा पेपर भी है. मैं बोला भैया पेपर तो है, अभी क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसे ही है. Then my parents, I was the only child to my parents. My mother was, and parents, मतलब ठीक ठाक है, मतलब मेरा mother was in स्टेट सर्विस, पापा बैंक में थे. वो बोल रहे थे इतना कष्ट क्यों लेना है, तुम वापस आ जाओ. मैंने बोला नहीं, हम इस एग्जाम को कुछ देख के ही आएंगे, मतलब कुछ जो भी हो जाएगा. तो बिकॉज आई वॉज स्टेइंग इन माई फ्रेंड्स रूम, आई वॉज स्टेइंग ऑन द फ्लोर ओनली, एंड आई वॉज स्लीपिंग ऑन अ कार्डबोर्ड का शीट में. आई वॉज नॉट स्लीपिंग ऑन अ बिस्तर ऑल्सो, और किताबें था. तो आई वॉज स्लीपिंग ऑन अ कार्डबोर्ड शीट एंड मतलब चल रहा था. और ओनली सेविंग ग्रेस वॉज मेरे को दैट हमने प्रीलिम्स उस साल निकाल दिया था, और मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मतलब घर से जो पैसा आ रहा था वो भी मेरे को थोड़ा मतलब लग रहा था हमें इसका पैसा का भी कुछ फंडा ये करना पड़ेगा, JRF भी हमें क्लियर करना पड़ेगा. आई डो नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट. तो आई वाज एक बार फर्स्ट मार UPSC में खाने के बाद वेरी वेरी श्योर दैट जो भी हो जाएगा हम इसको कर लेते हैं. फिर उसके बाद उस टाइम का जो प्रीलिम्स होने के बाद जो हमारा मित्र का जिस रूम में थे, सो आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, पीपल वर कमिंग टू मी, PT कैसे निकालना है, प्रीलिम्स कैसे निकालना है बोल के. सो मेरा जो जिस रूम में मैं था, वो जो भैया ने बोला नहीं यार तुम ना ऐसे ना रूम खाली कर दो. तो बिकॉज ही वाज नॉट क्लियरिंग प्रीलिम्स, तो उन्होंने मेरे को भगा दिया. तो मेरे को अभी भी याद है, देन आई वाज क्राइंग एक्चुअली. आई सैट इन वन प्लेस इन JNU. आई स्टिल रिमेंबर, अभी भी मैं दिल्ली में हूँ, मैं जाके देखता रहता हूँ ऑन दोस प्लेसेस वेयर आई वाज सिटिंग एंड क्राइंग एक्चुअली. तो आई वाज फीलिंग वेरी डिजेक्टेड. पता नहीं इस साल उस साल में उस टाइम मैंने रोट UPSC मेंस. आई वाज 22 years. तो मेरे को याद है इन्विजिलेटर बोल रहा था, आई वाज राइटिंग माय मेंस, बेटा इस हॉल में सबसे कम उम्र वाला बच्चा आप ही है, एग्जाम ठीक से लिखो, आप अच्छे लिखेंगे तो आप आगे भी बहुत जाएंगे, बिकॉज आपका उम्र बहुत कम है. हमारा सोच में ऐसा था दैट उस टाइम में मेंस लिखना इज लाइक आई वाज, मतलब मैं सपने में हूँ या पता नहीं. तो फॉर मी व्हेन आई एम राइटिंग मेंस वाज अ बिग थिंग दैट टाइम. मेरे को उससे आगे मतलब कुछ सोच नहीं था, बिकॉज फॉर मी उस हालात में जब मैं PT क्लियर किया था वो बहुत बड़ी बात था. फिर उस साल मेरा नहीं हुआ. देन अगला साल मेरा UGC हो गया था, बट मेरा PT नहीं हुआ, प्रीलिम नहीं हुआ. तो UGC होने की वजह से मेरा कमरा मिल गया था JNU में. फिर ऑल दोस जो प्रोफेसर्स मुझे बोल रहे थे, बेटा मैंने आपको देखा नहीं, अरे अरे आप तो बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम आपको गाइड करेंगे, आप आइए हमारे साथ. तो अचानक सब, ओनली थिंग इज दैट उस साल मेरा PT नहीं हुआ, मेरा कमरा मिल गया था, पढ़ाई वढ़ाई करने का ये मिल गया था. फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरा हमारा एकदम बढ़िया तैयारी था, और उस साल मेरा निकल गया था. तो मतलब आई हैड टू गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स. तो मेरा मतलब उतना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट,
but I had gone through a little bit of difficulty. So it's like जब तक मंजिल ना मिले फिल्म अभी बाकी है. बिल्कुल बिल्कुल. What was the reaction of your parents when they came to know कि now you have passed the civil service examination? मेरा पापा तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर रहे थे. वो बोल रहे थे दैट यार यू मस्ट हैव सीन किसी और का रिजल्ट है, तुम्हारा तो मतलब हो ही नहीं सकता. ठीक से देखा क्या? उनको पता था दैट आई वाज प्रिपेयरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स एंड ऑल, बट उनको बिल्कुल ये नहीं था दैट ये लड़का मतलब सिविल सर्विसेज क्लियर कर सकता है बोल के. ऐसे नहीं नहीं, मैंने 2-3 बार चेक कर लिया. नॉट ओनली मी, मेरा फ्रेंड्स लोग भी चेक किया है. नहीं नहीं, मेरा असलियत में मेरा हो गया है. Then my mother was very happy. My father was okay, चलो बढ़िया, अच्छा हो गया बोल के. They were happy that finally मतलब लड़के का हो गया. And my mother took BRS. Rather, my mother took retirement 2005 में. The year I got the service, my mother took retirement. मतलब actually वो ये हो गया था. That's the only thing. So where did you started your career journey from? मेरा जो फर्स्ट जो पोस्टिंग है मतलब आफ्टर द 2 years मैंडेटरी ट्रेनिंग विच इज ट्रू फॉर ऑल द सर्विसेज. आप एफसी करने के बाद आपका डिपार्टमेंटल ओजेटी सब होने के बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ है गुवाहाटी में. गुवाहाटी का जो भी सिचुएशन भी वेरी वेरी फनी है. जब हमारा जब ट्रेनिंग खत्म हो गया डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, सबको चॉइस पूछते हैं मतलब जो हमारा सर्विस में डिफेंस अकाउंट्स में we go and talk to our senior officers. उसका एक अटैचमेंट होता है एंड पूछते हैं दैट आपको क्या क्या चॉइस कहाँ कहाँ चाहिए फर्स्ट पोस्टिंग. कोई कोई बोलते हैं मतलब राजस्थान का 2-3 हमारा फ्रेंड्स लोग थे, वो बोल रहे जयपुर या जोधपुर दे दीजिएगा. हमारा मित्र लोग थे यूपी कानपुर, वो कानपुर दे दिए, लखनऊ दे दीजिएगा. तो मेरा एक फ्रेंड आंध्रा से है, वो बोला हैदराबाद दे दीजिए. तो हमें पूछे थे नहीं तुम कहाँ जाना चाहते हो बोल के. मैंने बोला सर हमें चेन्नई नहीं जाना है, हमें चाहिए. मैं उस टाइम बिकॉज एमफिल कर चुका था, मुझे आईआईटी से पीएचडी करना था. मुझे इधर दिल्ली या मुंबई दे दीजिएगा बिकॉज उधर का आईआईटी का बहुत स्टैंडर्ड अच्छा है. मुझे इधर आप दिल्ली दे दीजिएगा, नहीं तो मुंबई दे दीजिए. पुणे भी देने से ठीक है, मैं जाके पढ़ाई कर लूंगा. दिस वाज माय रिक्वेस्ट. तो उसमें एक हमारा मित्र थे जो आंध्रा से थे, उनका शादी हो गया था. ड्यू टू व्हाटएवर रीजन ही सेड दैट मैं आंध्रा नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे कहीं भी दे दीजिएगा. तो 7 लोग थे हमारा बैच में, तो मेरा नंबर लास्ट था. तो जब हमारा नंबर आया था, हमारा बॉस मेरे को ऊपर नीचे देख रहा था. सर बताइए, तो पोस्टेड टू गुवाहाटी. गुवाहाटी तो सर गुवाहाटी है क्या? असम में है? हाँ यार गुवाहाटी है. तुमने गुवाहाटी मांगा है क्या? मैंने बोला सर नहीं है. तुमने मांगा क्या है? सर हमने मांगा था दैट कहीं आसपास जो आईआईटी और बॉम्बे में मतलब पीएचडी करने के लिए. तो क्यों गुवाहाटी क्यों दिया? एक बार बात कर लो, फोन घुमा दो. ठीक है, तो फोन घुमाया. उधर का जो अफसर थे बैठे थे, वो बोल रहे थे यार तुम ही तो थे जो मतलब जिसका शादीशुदा था और कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए हमने दे दिया. सर वो हम नहीं थे, वो मतलब रमेश था. अरे यार हमने सोचा रमेश है बोल के कोई दिक्कत नहीं है तो कर लो बोल के. तो आई वाज लाइक देन आई टोल्ड माय बॉस सर रमेश सोच के हमें दे दिया. ठीक है यार मतलब चले जाना, ऐसे मतलब बुरा स्टेशन भी नहीं है. सो आई टुक इट ऑन माय स्ट्राइड. देन आई वेंट टू गुवाहाटी. गुवाहाटी के बाद आई वाज इन इच्छापुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री. उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया था. दिल्ली के बाद भूटान गया था, देन महाराष्ट्र, देन दिल्ली. सो ठीक ठाक है माय पोस्टिंग अभी. So what all challenges you faced post becoming an officer? As an officer, frankly speaking, हमारा मतलब कुछ इशू नहीं था. I'm good with people. I'm decently good at communication. So मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं था. एक इंटरेस्टिंग इवेंट था जब हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इच्छापुर में थे. तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत ट्रेड यूनियनिज्म दबा के चलता है, यूनियन बाजी बहुत. तो जब हम ज्वाइन किए थे, मतलब मेरा सेकंड पोस्टिंग था. तो जब इच्छापुर ज्वाइन किए थे, आई वाज मैरिड हेड. तो उधर क्या है, थोड़ा ऑफिस में अटेंडेंस इश्यूज था. थोड़ा लोग लेट आते थे, हम जल्दी चले जाते थे.
हमने बोला था मित्र लोग, बंधु लोग, आप लोग समय पे आ जाइए, काम करके चले जाइएगा। तो उनको थोड़ा अजीब लगा, सर हम ऐसे नहीं आएंगे, हमारा जो मन में है उसी टाइम में आएंगे। एंड आई टोल्ड दैट देखिए, आई एम, whether you like it or not, I am the head of this office and government of India has given me disciplinary authority का powers भी, and I do not want to use it and doesn't look nice also. आप लोग टाइम पे आ जाइए, टाइम पे चले जाइए, because everybody has got a responsibility as a government servant. We have signed an oath of allegiance to the constitution जब हम लोग सेवा में आए हैं, be it from UPSC or Staff Selection Commission. So and we are all for the defense forces. So we will have to do justice to our line of work. After 5:30 or 6, you are free to do whatever you want. But please do. तो फिर वो लोग चार पांच नेता लोग मेरा, और 150 लोग, 4-5 नेता प्लस 150 लोग मेरे कमरे में आ गए। तो बंगाली में क्या बोलते हैं उसको, काच कोरबेना, काच कोरबेना मतलब हम काम नहीं करेंगे। 150 लोग मेरे कमरे में आके घेराव करने लगे। वो बोलते सर आप बाहर से आए हैं, थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा, फलाना ढिमकाना एंड ऑल दोस थिंग्स, धमकी दे रहे थे। मैंने बोला यार मैंने बहुत ये सब देख लिया, हम भी थोड़ा मतलब स्टूडेंट लाइफ से आ रहे हैं, कोई मतलब पैदाइशी कोई अफसर नहीं बनता, तो आपको जो भी करना है कर लीजिए, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है, बट इफ यू कंटिन्यू डूइंग दिस आई विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन एज पर कॉन्डक्ट रूल्स। हमें कुछ ये नहीं है। तो दे सेड एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट सीनियर बॉस इन द स्टेशन एंड सेड नया साहब है वो ऐसे बोल रहे हैं। तो वो साहब उनको बोला वो अफसर से थोड़ा संभाल के रहिए, ही हैज गॉट हिस्ट्री बिहाइंड हिम, तो जो भी वो बोल रहा है आप कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा है। तो वो लोग वापस आ गए थे, तो बोला सर आपके बारे में सुना है, तो जो जैसे आप बोल रहे हैं आप कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन पीपल ऑल वी आर गुड, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू, थोड़ा क्या बोलते हैं, टाइट करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज टाइट करने के लिए different ways and means of doing disciplinary action in the government. I did not want to do. I have wanted to give them an opportunity, which they took it. Then I did not want to use any coercive measure at all. फिर एकदम ठीक हो गया था, and by the time I left that station, the same set of people जो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो बोल रहे थे सर आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, आप जैसा अफसर हमें चाहिए बोल के। सो पूरा माहौल ही एकदम चेंज हो गया था। सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन बंगाल, बहुत अच्छा। So what all type of departments have you handled in your course of journey? Now I have worked with in the Ministry of Defence, in the Defence Account Service. I've worked with the Army. I've worked with the Border Roads Organization. I've worked with Ordnance Factory Organization. I've worked with the Navy. I've worked with DRDO. I've worked with most of the organizations in Ministry of Defence. And अभी मेरा जो present assignment at NITI Aayog, I am dealing with the Northeast states. Northeast states में M donor है, MHA है, बाकी जितने भी line ministries हैं, तो all the ministries of the government of India, we are in touch by default of being in NITI Aayog. So it's a good experience as of now. मतलब मेरे हिसाब से most important thing which a person should have, whether you are in government service or a private service, is that you should keep an open mind for learning. आपको कुछ आता नहीं है, your mind should be like a sponge, ready to absorb as much as possible and keep on learning. वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखने के लिए there is no end in the world and there is too much of information and too much of knowledge. One keeps that outlook, it will always help you. वो मेरा फंडा है, I just keep that in my mind. So what's that one thing that you love about your profession the most? In my profession, as I said, the sense of being part of the defense forces, you are actively contributing to the country. एक और बात मैं आपको बोल रहा हूँ, सिंस ये आप क्वेश्चन आप, जब हम एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में महाराष्ट्र में पोस्टेड थे, that factory is responsible for a particular item which is a critical item in all our satellites. हर बार हमारा सैटेलाइट जब इंडिया से श्रीहरिकोटा से जो जाता है, then the head of that ISRO calls the head of that factory and thanks
him that because of your team our satellite has gone into orbit successfully. तो उस टाइम मेरे को लगा भैया आप एकदम अच्छा काम कर रहे हैं, भले मेरा परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन वाज 0.00001%, बट हमारा कंट्रीब्यूशन is there in that satellite. So मेरे को I feel that एक sense of क्या बोलते हैं satisfaction and achievement that's a different feeling. मतलब ऐसे हमें ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिला टाइप ना, मतलब भारत के लिए जब आपका झंडा ऊपर जा रहा है और आपका नेशनल एंथम, उस टाइप का फीलिंग आया था जब व्हेन आई गॉट दैट कॉल. फिर देन उसके बाद हमारा जो पूर्व रक्षा मंत्री साहब जो पर्रिकर साहब आए थे, हमारा टीम को सबको ही मिलाए थे, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड अ फीलिंग. तो वो उसका मैच अभी तक कुछ भी नहीं है, तो वो मतलब अलग से फीलिंग है, एकदम बढ़िया फीलिंग. So, who is your mentor as an officer? I've got lot of good officers in my service also. I have lot of I cannot say one mentor as such, but as a mentor for an aspirant, मैंने आपको पहले भी बोला था, हमारा 3R जितने भी भैया थे, राहुल भैया, रफीउल भैया और रजनीश भाई, so they were there. Had they not been there, I would not have become an officer at all. So there are lot of good officers are there. They keep telling us that आपको किसी को help करना है, that is where your actual power is. Power is not in troubling people. Power is in helping people. If you are able to help people, you become very powerful. That is the funda which I learned from all my good senior officers, both in the defense services as well as in the civil services. आप लोगों को मदद कीजिए. That's the only way if you want to be powerful, not by troubling people. That's what I learned. So, any heart-touching moment apart from that satellite one you would like to share? People are my strength. I keep talking to people, and there are people whom I have never met also, but I must have spoken over the phone and all. There was one army captain whom I helped when I posted in Bhutan. I've never seen him, but he called me up one day. He said that sir, आपका एक जो लेटर आपने भेजा था मेरे लिए, it had helped me to get some उनका जो भी financial benefit है, which was lying इधर उधर, ज़्यादा समय हो गया था. So he said that sir, आप you do not know me also. Then I told him that help is done not to known people. Help is always done to people whom you don't know. That's how help has to be done also. So I believe in that concept, and I'm happy that मेरा कुछ आपको कुछ help मिल गया था. So that was a good moment. So, how was your experience when you completed leadership good outcome from Goldman School of Public Policy, USA? Berkeley was a good exposure from bureaucracy perspective also, as well as a leadership perspective also. A lot of good things which we came to know in the US. US में एक फंडा बहुत rather surprising हमें लगा था. So there was that a lady who had come from the local administration. I asked, ma'am, how long does your laws change? Because in India, laws and acts change a lot of time. They said every year we change our laws. हर साल change होता है, because that's how the ecosystem changes so fast. Because technology changes so fast, हमारा rules and regulations also have to change that in that speed. else तो because technology जल्दी change हो जाता है, आपका rules and regulations don't change fast, then there is a mismatch. So they said that California में बहुत fast change होता है, and lot of new things which we learned about leadership, team building in the US. So it helped us. But US का fundas थोड़ा different है, because it's a different country. India is a different country. But जब भी हम ट्रेनिंग में भी कहीं भी जाते हैं, we have to forget that आप एक ऑफिसर हैं, bureaucrat हैं from the civil services. You should go with a student approach, and you should tell yourself that हमें कुछ आता नहीं है, that मैं पहली बार कुछ सीख रहा हूँ, and you should drop your ego. जब आप ईगो के साथ आप कहीं भी जाएंगे, हम इधर से आ रहे हैं, हम उधर पढ़ाई किए हैं, हमारा बैकग्राउंड ये है, then the mind is closed. So I kept an open mind, and I learned a lot from Berkeley, and I'm still in touch with most of the professors in Berkeley also, because it is once you meet a person, especially from that
बर्कली में एक सरप्राइजिंग हमें लगा, उधर एक एक कार पार्किंग स्लॉट इज फॉर नोबल लॉरिएट्स, मतलब वो अभी भी नोबल प्राइज विनर्स के लिए उधर उनका स्लॉट कार पार्किंग रखा है। एक एक करके देख के हैरान हो गया, मतलब वो नोबल कार वाज पार्क्ड एंड दैट वाज अ नोबल लॉरिएट्स कार पार्किंग, मतलब 10-15 था। हम लोग मतलब it's a big thing for us, मतलब Nobel laureates coming and going just like that, मतलब you cannot, and it's very privileged for that university का students that रोज वो लोग देखेंगे ना नोबेल लॉरिएट्स को, हम लोग तो मतलब जिंदगी में एक बार देख सकते हैं। सो वो एक बड़ा लर्निंग था फ्रॉम बर्कली। So, what are your roles and responsibility as Director Northeast State NITI Aayog? As director Northeast in NITI, my role is that जो भी भारत सरकार का schemes from the line ministries जो donor है, बाकी सब other line ministries है जो Northeast में, from the NITI Aayog we'll have to see that they get implemented and there is all round development in the Northeast. Northeast has got a lot of potential, lot of good skill sets, very rich place, resource wise also, biodiversity wise also, it's one of the hot spots. So वो एरिया एंड पीपल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी को डेवलप करने का एक होलिस्टिक मैंडेट है हमारा डिवीजन का। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, इट्स अ टीम वर्क है, गवर्नमेंट में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क, वी हैव अ गुड टीम है, we always interact with other departments and ministries as teams only, and we all work together. So it's a very good experience. So, what advice would you like to give to new officers? Advice for new officers is like you should keep your mind open and learn new skills, because this is an era of specialization, and you should be able to specialize in one area which is your passion. जब आपका पैशन is able to solve a problem, then your work becomes play, your play becomes work. Virat Kohli is working, but he's playing. He's playing and he's working. He's a professional. So work is play, play is work. जिनको उनका पैशन से ही वो काम हो जाता है, फिर देर इज नो मंडेज, देर इज नो सैटरडे, देर इज नो संडे, आज मंडे आ गया, अरे सैटरडे संडे छुट्टी हो गया, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नहीं। जिसका पैशन ही काम हो जाता है, he or she will start loving life, and ऑफिस और घर का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको हर रोज आपको मतलब एंजॉयमेंट है। सो एवरीबडी शुड ट्राई टू हैव दैट पैशन, उनका स्किल को एनहांस करना पड़ेगा, और उनका स्किल में दे शुड फोकस and they should identify their skill, then life will be very very easy. So, what all are do's and don't you would suggest while preparing for civil service examination? It's a good question. Civil service examination is a mental marathon, that's what I see, and it's smart work, it is not hard work, it is smart work. Do's and don'ts, first and foremost thing is that as an aspirant you should not come into civil services कि मेरा बुआ ने बोला है, मेरा अंकल ने बोला है, मेरा चाचा ने बोला है, मेरा पापा ने बोला है। आपको अंदर से वो ड्राइव होना चाहिए that you want to come into civil services, because I accidentally found my drive, as I said that my drive was somewhere else. So in your case तो it has to come from within, because मेरा सर्विस में आने के बाद मेरा जो भी कजिन्स लोग मतलब सबको ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा, देखो भैया कर दिया। I told my uncles and aunties that नहीं, उनको जो भी करना है मन में कर दीजिएगा, don't let them come because I am into service, let them do whatever they want in life. Number 2 is that आपको sure होना चाहिए that if you want to go into police service, if you are sure about it, please take a medical test on your own खर्चा, because if you do your medical test on your own खर्चा, you will come to know whether आपका बॉडी में कुछ फिजिकल इश्यूज है या नहीं। इसके बारे में मैंने एक ऑलमोस्ट मेरा एक किताब तैयार हो गया है,
on civil services aspirants के लिए. It is called service by choice, right choice, right decision and right service. उस बुक में हम क्या बोलना चाहते हैं that normally civil services exam में there are 24 services. 2 ऑल इंडिया सर्विसेज है IAS और IPS और करीब 16 to 17 ग्रुप ए सर्विसेज है और 5 ग्रुप बी सर्विसेज है. सब सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को पहला 3-4 सर्विस छोड़ के बाकी सर्विसेज में क्या है क्या नहीं है बिल्कुल आइडिया नहीं है. एंड देयर आर सो मेनी अदर गुड ग्रुप बी सर्विसेज आल्सो व्हिच आर इन बराबर टू IAS इन प्रमोशन. एट द एंड ऑफ द डे कोई भी सर्विस में आप जॉइंट सेक्रेटरी कब बन रहे हैं बहुत जरूरी है. भारत सरकार में इफ यू आर बिकमिंग जॉइंट सेक्रेटरी किस सर्विस में किस तेजी से आप जॉइंट सेक्रेटरी बन रहे हैं वो बहुत जरूरी है. तो इन माय अपकमिंग बुक आई हैव टोल्ड अबाउट ईच एंड एवरी सर्विस में क्या क्या हर एक सर्विस का खूबी क्या है प्लस माइनस क्या है सुविधा क्या क्या है. तो ग्रुप ए सर्विसेज में क्या क्या है ऑल इंडिया सर्विसेज में सब तो सबको जानते हैं IAS IPS में. ग्रुप ए सर्विसेज में क्या है ग्रुप बी सर्विसेज में क्या क्या किस किस सर्विसेज मिलने से आप पूरा लाइफ दिल्ली में रह सकते हैं वो सब एनालिसिस करके हम वो किताब में अभी ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द बुक. होपफुली दैट विल हेल्प लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स टू फिल. जब वो लोग मेंस का फॉर्म भरेंगे उनको पता भी होना चाहिए क्या क्या सर्विस में क्या क्या प्लस माइनस है रादर देन किसी ने ऐसे फॉर्म भरा उसको फोटोकॉपी लिया हमने ऐसे ही भर दिया था. तो इट इज अबाउट एन इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड राइट डिसीजन. आपको राइट सर्विस मिलेगा क्योंकि आपको एक बार आप मेंस में जो भी फॉर्म में आप भरेंगे दैट विल बी देयर. मतलब दैट इज एज इफ यू आर राइटिंग ऑन स्टोन. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट. Hopefully हमारा ये छोटा सा contribution will be beneficial for the aspirants. So as you have told कि भाई अंदर से वो चाह होनी चाहिए कि भाई मेरे को सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या सिविल सर्वेंट बनना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाचा ने बोला ताऊ ने बोला और बस निकल लिए. So according to you, what is the right age to start preparing for civil service examination? In government service, the earlier you enter, the better it is for you because आप थोड़ा आगे तक जाएंगे. So the right age is ideally if you say 21 is the right age because that is where you finish your graduation. फिर आप you're 21 and by the time you complete your graduation and if you clear it in your first attempt nothing like that और first attempt में आपको IAS मिल गया तो फिर you will go all the way up to cabinet secretary or any service of your choice. जो भी आप मतलब जितना जल्दी आपको सर्विस मिलेगा प्रोवाइडेड आपका बाकी सब ठीक ठाक रहे तो बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर सर्विस आराम से आप सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक आराम से आप चले जाएंगे. तो बट आजकल जितने भी लोग सर्विस में आ रहे हैं दे आर ऑल कमिंग विद सम वर्क एक्सपीरियंस. नॉर्मली 2-3 साल प्राइवेट में या और पे सरकारी काम में करके आ रहे हैं. सो 24-25 इज अ गुड एज टू कम इनटू सिविल सर्विसेज. बट अर्लियर द बेटर. मतलब आपको अर्लियर द बेटर मतलब आपको पहले से ही बट अंदर से आपको ही वो मतलब डिजायर और ड्राइव होना चाहिए रादर देन इट शुड नॉट बी पुट फ्रॉम समबडी एल्स दैट नहीं बैठो तुम तैयारी करो एंड ऑल दोस थिंग्स. तो अपने आप आ जाएगा तो नथिंग लाइक दैट. जितना जल्दी हो जाएगा उतना बढ़िया है बिकॉज गवर्नमेंट में जितना अर्ली आप आएंगे उतना बेनिफिट है. So now we will start our rapid round. Your favorite actor and actress? मेरा फेवरेट एक्टर है रजनीकांत है. माय फेवरेट एक्ट्रेस इज रेखा जी है. Your favorite color? मेरा फेवरेट कलर है ब्लू. The brand you love the most? The brand I love the most is खादी. Your favorite destination? मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है इस भूटान. बहुत शांति है उधर. Your favorite car? मेरा फेवरेट कार मेरा गाड़ी है फुंडाई का मैं चला रहा हूँ वही. Your favorite book? 10x by Grant Cardone. Oh, it's a good book. Best boss? मेरा फेवरेट बॉस was दीक्षित सर है. Very very magnanimous, fatherly figure, looks after you. बहुत अच्छा अफसर. तो बहुत मानते हैं सर. Things in your wish list?
things in my wish list, मेरा उतना ज़्यादा नहीं है to be good and help people. That's all. मेरा ज़्यादा कुछ ये नहीं है. Your role model professionally and personally. मेरा role model, if you say professionally and personally, is Mr. Sundar Pichai of Google. One thing that you would like to change if you are provided superpower. If I'm able to feed all the poor people in the world, that's the only superpower I want. Second choice of career. Second choice of my career is to be a Fauji. At last, one line that defines you. Hard work. It was pleasure talking to you and listening to the experiences and advice you have shared on our show. Thank you very much for your time, sir. Thank you for having me. Thank you so much. Best wishes. Thank you. Thank you very much, sir. Thanks for watching Amazing Mentor. Don't forget to subscribe and hit the bell button to get regular updates. Thank you very much.